welcome back in order to teach you the adverb. And the adverb is the fifth part of the speech. Before this, I taught you noun, pronoun, adjective, verb, and now today I will teach you regarding adverb. Definition of adverb. It is a word that describes about the quality or disquality of a verb, adjective or adverb if any. ये वो शब्द है जो कि नाउन, जो कि वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब अगर कोई है सेंटेंस के अंदर उसकी विशेषता के बारे में बताता है। ये आपके सामने परिभाषा है। एंड नाउ द सेम द रिलेटेड एग्जांपल ऑफ द डेफिनेशन राम रन्स क्विकली, राम तेजी से दौड़ता है। राम तेजी से दौड़ता है। सेकंड सेंटेंस, देयर इज ए वेरी स्वीट मैंगो, ये आम बहुत मीठा है। इन फर्स्ट सेंटेंस यू आर सेइंग ओनली द थ्री वर्ड्स, सब्जेक्ट, वर्ब and quickly will come in the category of adverb and runs comes in the category of verb. So quickly is telling about the quality of run and run is noun. और परिभाषा में यही लिखा हुआ है वो सब होता है जो कि वर्ब की या एडजेक्टिव की या अगर कोई एडवर्ब है उसकी विशेषता के बारे में बताता है। इसके अंदर रन्स क्विकली एक एडवर्ब है और ये एडवर्ब रन्स की विशेषता के बारे में बताता है और रन्स क्या है, नाउन है। राम तेजी से दौड़ता है, यानी कि इसमें इसके दौड़ने में बढ़ोतरी की गई है, दौड़ने की प्रशंसा की गई है, क्वालिटी बताई गई है, किस तरह दौड़ता है। Next, Ram runs quickly. इसके बाद there is a very sweet mango. Very in this sentence, very is the adverb and sweet is adjective. Now, in the first sentence, quickly told the quality of the verb, while in this sentence, adverb that is very is intimating the quality of adjective. दोबारा बताता हूँ। In first sentence, adverb quickly told about the quality of verb that is runs, and in second sentence, adverb that is very is telling the quality of the adjective. Now, kinds of adverb. There are three kinds of adverb: simple adverb, relative adverb, and interrogative adverb. Simple adverb has been divided into 7 parts. Number 1, simple adverb of time. Number 2, simple adverb of place. Number 3, simple adverb of number. Number 4, simple adverb of manner. Number 5, simple adverb of degree or quantity. Number 6, simple adverb of affirmation. And number last and 7, simple adverb of negation. These are the parts of simple adverb. Now we take first part, that is simple adverb of time. ये describe about time, ये time के बारे में बताता है। कैसे? I shall go there tomorrow. मैं कल मैं वहां जाऊंगा। I will come here today till evening. मैं आज यहाँ शाम तक आ जाऊंगा। We go to school daily. हम रोजाना स्कूल जाते हैं। तो like these words, today, tomorrow, yesterday, daily, such kind of words will come in the category of adverb, simple adverb of kind. Today, daily, tomorrow, so such type of words are intimating
the time, ये तीनों शब्द ये बता रहे हैं टाइम के बारे में, टाइम के बारे में इसलिए हम कर रहे हैं ये तीनों शब्द, टुमारो, डेली, टुडे। तो जाहिर सी बात है, दिस विल कम इन द कैटेगरी ऑफ सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, और परिभाषा भी यही है। नाउ कम टू नाउ सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस एक गेस्ट टाइम अबाउट द प्लेस, ये किसी स्थान का वर्णन करता है। जैसे I will reach there, I will reach there, मैं वहां पहुंचूंगा। I will come here before noon, दोपहर से पहले मैं यहाँ आ जाऊंगा। And get out from here, come in, come inside, come in the office, go outside from the office, ऑफिस के बाहर जाना, अंदर आना, इधर आओ, उधर जाओ, कहीं मत जाओ। तो such type of word, there, here, out, go out, come in, out, here, there. Such type of word will come in the category of simple adverb of place. If any type of word comes in any sentence, then you have to automatically understand that this simple adverb, that simple adverb of which kind? But this is only simple adverb of place, because in three of the sentences about the place is being described, and that word which is describing about the place, वो कौन सा शब्द है जो प्लेस के बारे में कहता है? There, here, in, out. These are the four words which are describing about the place. Simple adverb of place. There, here, in, and out. जैसे स्टूडेंट ने टीचर से कहा, may I come in sir? टीचर ने कहा, yes come in. क्या ये कहा? No. You have to wait out of the class. इन बोला उसने, मतलब अंदर आने के लिए, अंदर का मतलब है कमरे के अंदर, यानी कि जगह के लिए बोल रहा हो, प्लेस के लिए। टीचर ने कहा नो, यू हैव टू वेट आउटसाइड ऑफ द क्लास, तुमने क्लास के बाहर इंतजार करना है। वो बाहर, क्लास के बाहर का जगह जो है वो भी प्लेस ही माना जाएगा, अंदर का प्लेस माना जाएगा, पाताल के नीचे प्लेस माना जाएगा, और जमीन के अंदर भी प्लेस माना जाएगा। चाहे आप कहीं भी इधर उधर हेयर देयर आप कहीं भी रहे हैं, 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, सिटी के नाम से या कस्बे के नाम से, गांव के नाम से, दिस ऑल दिस will be counted in the category of simple adverb of place. Now come to of number, simple adverb of number. एक कैसा है about the number of doing any work, किसी काम को करने की संख्या के बारे में बताता है। अगर टीचर ने कोई सवाल पूछा, suppose that teacher asked the student not to answer the question asked by the teacher, and the student is unable to answer the question, then teacher says to him that the night you learn something else or not, or you slept without learning something else. तुम पूरी रात को बिना कुछ याद करे सो गए या तुमने कुछ याद भी किया? स्टूडेंट ने कहा कि सर I learned the chapter not only once but also twice and thrice. एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार याद किया। तो twice, thrice, once, such type of word will come in the category of simple adverb number. नंबर का मतलब है कितनी बार, संख्याओं में, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो और 4 बार, 5 बार, 12 बार। So this type of word will come in the category of simple adverb number. Always, suppose करो, always speak the truth. Raman did it twice. Postman told me again. He told me again. Yeah, I was told by the teacher
to the school again in order to answer the question what were asked me by the teacher the following day. टीचर ने मुझे दोबारा बुलाया क्योंकि मैंने पहले दिन किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया था। उन क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए दोबारा मुझे बुलाया। दोबारा अगेन I was told by the teacher again it will come in the category of simple error of manner. I read my chapter twice and thrice. I always learn my chapter early in the morning. मैं हमेशा चैप्टर को सुबह सुबह याद करता हूँ। I learn the chapter twice or thrice. मैं चैप्टर को हमेशा 2 या 3 बार याद करता हूँ। I do not learn any chapter only once. एक बार ही याद नहीं करता बल्कि I repeat the same chapter again and again at least twice or thrice. एक चैप्टर को मैं एक ही बार याद नहीं करता बल्कि मैं 2 बार और 3 बार याद करता हूँ। तो ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बारंबार हमेशा, ठीक है, once again twice always, such type of word will come in the category of simple error of numbers. Okay, now come to number 4, simple error of manner. सिंपल एरर ऑफ मैनर, ये काम किस किस्म से हुआ, किस तरह से हुआ, भाव क्या था, उसका तरीका क्या था, उसके बारे में करता है। अबाउट टाइप ऑफ डूइंग एनी वर्क। जैसे कह देते हैं कि द सोल्जर्स ऑलवेज फाइट ब्रेवली, द ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक क्लियरली। जब बच्चा पढ़ता है तो उसके पढ़ने के भी भाव कई प्रकार के होते हैं। एक तो डीपली मन से पढ़ता कि मैं आज इसको पढ़ के और याद करके ही सोऊंगा। एक ये थोड़ा सा याद कर लेता हूँ, कल देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा बहुत इतना तो याद ही कर लूं जिससे मैं अपने आप को टीचर के प्रकार से बचा सकूं। तो 3 काइंड है, देयर आर 3 काइंड्स इन ऑर्डर टू लर्न एनी चैप्टर। इस चैप्टर को याद करने के 3 काइंड है। एक काम चलाओ के तौर पे, एक थोड़ा सा इतना याद कर लो जिससे टीचर पीटे ना, और एक ये सोच के कि ये मेरी जिम्मेदारी मानता है, मैं डीपली इसको याद करता। तो ये तीनों टाइप आती है सिंपल एरर ऑफ मैनर के अंदर। यानी कि इस काम को करने का तरीका क्या था, भाव क्या था, कितनी जिम्मेदारी के साथ उसको किया गया, क्या जिम्मेदारी, क्या अपने ड्यूटी निभाई गई, क्या अधिकार निभाए गए उसके साथ, इसी को कहते हैं सिंपल एरर ऑफ मैनर। एक डिस्क्राइब अबाउट टाइप ऑफ डूइंग एनी वर्क, किसी काम को करने की टाइप क्या थी उसकी, उसके बारे में बखान करता है। क्या चाहे कोई आदमी सोता है गहरी नींद में, कोई सोता है आंख मिच, कभी आंख खुल गई कभी मिच गई, कभी आंख खुल गई कभी मिच गई, ठीक है। कभी कोई सोता ही बहुत कम है, थोड़ा सो रही होती है, तो ये सबको टाइप बोलते हैं। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, बच्चा गहरी नींद में सो गया, तो दिस इज आल्सो ए टाइप। दिस सेंटेंस एंड इन दिस सेंटेंस ओनली वन वर्ड दैट इज साउंडली इज शोइंग द मैनर ऑफ डूइंग एनी वर्क, यानी कि ऑफ स्लीपिंग। ये सोने का टाइप बता रही है। द सोल्जर्स ऑलवेज फाइट ब्रेवली, सोल्जर हमेशा बहादुरी के साथ ही लड़ते हैं। अगर बहादुरी के साथ न लड़े तो ये भी हो सकता है कि उनको इतनी सफलता ना मिले जितनी वो चाहते हैं। तो ब्रेवली, बहादुरी के साथ लड़ना बहुत जरूरी होता है। कुछ जगह ऐसी है जहां पर किसी काम को डीपली ही किया जाएगा, वहां पे कोई सुस्ती नहीं होती, कोई आलसना नहीं होता, कोई 1, 2, 3 की कैटेगरी नहीं होती। जैसे फौज, वैज्ञानिक अपना वो बॉम्ब बनाते हैं, वो पूरी दिमाग के साथ, पूरी लगन के साथ, फौज लगन के साथ काम करती है और वो भी डीपली मन से। The soldiers always fight bravely. सोल्जर हमेशा बहादुरी के साथ लड़ते हैं।
The child slept soundly. The honest man always speak clearly. ईमानदार आदमी हमेशा clearly बात करते हैं, बोलते हैं. They do not carry lie. They always speak truth. हमेशा वो सच बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते. तो my best friend, the soldier always fight bravely, without showing any laziness and without wasting any time in vain. बिना टाइम को वेस्ट करे हुए और बिना लेजीनेस सुस्ती को दिखाए हुए वो हमेशा बहादुरी के साथ लड़ते हैं. And it is only the soldier who always does his work bravely and in the aspect of duty. वही एक है जो कि अपने एक बहादुरी तरीके से लड़ाई लड़ता है और हर वक्त and each and every moment is understood as a costly moment in his mind. और हर क्षण एक मिनट, 2 मिनट, 1 सेकंड, घंटा मिनट तो बहुत दूर की बात है, 1 सेकंड भी उसके दिमाग में एक कीमती टाइम माना जाता है. And that is the main reason that the soldier always win the fight, because they show each and every time courage when they go in order to fight against the enemy, and they fight there bravely against the enemy, and by doing such they also win every fight, every war. यही वजह है कि वो हमेशा लड़ाई को जीतते हैं और लड़ाई को जीतने की वजह है कि उनके अंदर कोई सुस्ती नहीं होती, कोई टाइम वेस्ट नहीं करते, 1 सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि जब भी लड़ाई करने का मौका मिलता है बहादुरी के साथ अपने हर क्षण को कामयाब बनाते हैं, दुश्मन का मुकाबला करते हैं और हर लड़ाई जीतते हैं. तो my dear student, clearly, bravely, soundly, these all the words are showing the manner, are showing the type of doing any work. किसी काम को करने के तरीके के बारे में ये तीनों शब्द clearly, soundly and bravely ये बता रहे हैं. Now come to simple adverb of degree. It describes about quantity of doing any work. ये क्या है? किसी काम को करने की मात्रा के बारे में कहता है. Simple adverb of degree. It describes about degree of doing any type of work. About quantity of doing any work. ये किसी भी काम को करने की मात्रा के बारे में कहता है. ठीक है. जैसे पूछा गया कि दिन कैसा है, कैसा दिन चल रहा है, गर्म है ठंडा है, जवाब देने वाले ने बताया कि the day is very hot. प्रश्न पूछने वाले ने पूछा how is the day today, आज दिन कैसा है, जवाब देने वाले ने कहा the day is very hot. पहले क्वेश्चन होगा तब ये जवाब होगा. फिर दूसरा उसने पूछा कि how is water, what is the degree of water. जवाब देने वाले ने कहा वाटर इज वेरी कोल्ड और वाटर इज वेरी हॉट. तो हियर द डिग्री और क्वांटिटी ऑफ द डे और नाइट और वाटर और लिक्विड हैज बीन टोल्ड इन सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री. Simple adverb of affirmation. Now come to number 6. It describes about positive aspect. Simple adverb of affirmation का मतलब है कि हमेशा सकारात्मक रूप में जवाब देना. अगर टीचर ने कहा स्टूडेंट से परिभाषा describe about positive aspect on asking the question. जो कोई क्वेश्चन पूछने पे सकारात्मक जवाब देना का मतलब है सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन. टीचर ने कहा will you complete your homework and show me the same tomorrow.
क्या तुम ये होमवर्क करोगे और कब मुझे दिखाओगे? स्टूडेंट ने कहा, यस सर, आई विल डेफिनेटली शो यू द होमवर्क आफ्टर कंप्लीटिंग। मैं ये काम पूरा करने के बाद आपको कल जरूर दिखाऊंगा। विल यू शो मी क्लियरली? यस, आई विल शो यू माय होमवर्क क्लियरली। तो डेफिनेटली, क्लियरली, श्योरली, सर्टेनली, so these all words will come in the category of affirmation. आपके सामने लिखा हुआ है कि when there certainly, you are right, surely. किसने पूछा? Is your question like what you said yesterday? जो तुमने कल कहा, क्या वो तुम्हारा क्वेश्चन सही है? Yes, yes, I'm right, surely. या यूँ कहो, the answer of my question told to you is surely correct. Is surely right. So certainly, surely, mainly, clearly, these all words will come in the category of simple adverb of affirmation. Now come to last number and 7, that is simple adverb of negation. It describes negative reply. ये it describes about the negative reply. First ने पूछा, मान लो पेरेंट्स ने आपके ने पूछा कि will you bring 90% in each subject of your board examination? क्या आप हर सब्जेक्ट में 90% लेकर आओगे? स्टूडेंट ने कहा, no, I will not bring 90% of that. ये अगर जवाब दे देता है, ये आएगा सिंपल एडवर्ब ऑफ नेगेशन में। अगर ये जवाब स्टूडेंट ये कहता है, यस, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग 90% ऑफ मार्क्स, 90% ऑफ मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट ऑफ माय 12th एग्जामिनेशन बोर्ड, तो ये आएगा आपका सिंपल एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन में। हाँ में जवाब दिया सिंपल एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, ना में जवाब दिया सिंपल एडवर्ब ऑफ नेगेशन। जैसा कि आप परिभाषा में as you are saying the definition related to simple adverb of negation as well as simple adverb of affirmation on the board. टीचर ने कहा, do you know something else about this question? स्टूडेंट ने कहा, आपने कहा, but I do not know anything about this. So what was this answer? Has been given in negative aspect, so it will know, it will come in the category of simple adverb of negation. That to know, not लगा हुआ, तो जाहिर सी बात है ये negation साबित करेगा। He never spoke clever words, उसने clever शब्द कभी नहीं बोले। This sentence is also having negative, is also having negation, is also having negative aspect, negative reply. And reply is he never spoke clever words, उसने इन निर्दय शब्दों को कभी इस्तेमाल नहीं किया। And for the whole life, he never used the clever words in his law. कभी भी किसी भी मसले में उसने नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। Now come to second number, that is relative adverb. Relative adverb, it joins two sentences with each other. It joins two sentences with each other. Also describe about the time, place, number, time, place, region and manner, indicating towards the noun. नाउन की तरफ इशारा करते हुए टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर के बारे में बताता है और साथ ही ये दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ता है। नाम जैसा कि आप नाम से जाहिर है, रिलेटिव का मतलब ये संबंध जोड़ना, संबंधात्मक एडवर्ब is an adverb that joins two sentences with each other. Also tells time, place, region and manner, indicating towards the noun. नाउन का इशारा करते हुए टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर के बारे में बताता है और साथ ही ये दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ता है। एग्जाम्पल है, I know the time
मुझे ये समय अभी याद है, मैं इस समय को जानता हूँ। When I came here before 1 year, जब मैं यहाँ 1 साल पहले आया था तो मुझे वो समय याद है। I know the place where I was born, मुझे वो भी समय याद है जहाँ मैं पैदा हुआ। तो where is indicating to the place and when is indicating to the time। where इशारा करता है स्थान के लिए और when इशारा करता है टाइम के लिए। Tell me the reason why did you call me here, मुझे वो वजह बताओ जिसकी वजह से तुमने मुझे यहाँ बुलाया। तो why did you call me here, why did you call me here, और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, मुझे ये वजह बताओ। इस सेंटेंस के अंदर रीजन आ गया। पहले वाले जिसमें ये बताया था मैंने कि आई नो द प्लेस वेयर आई वाज बोर्न, वेयर, उसके अंदर प्लेस आ गया। उससे पहले वाला सेंटेंस जो मैंने आपको बताया था कि आई नो द टाइम व्हेन आई केम हियर, ये मैं जानता हूँ जब मैं यहाँ पे आया। तो व्हेन किसको साबित कर रहा है, टाइम के लिए। टाइम आ गया, प्लेस आ गया और रीजन आ गया, और यही परिभाषा के अंदर है। Also tells about time, place and reason, और मैनर आपके सामने लिखा हुआ है। मैनर tells about the time of doing any work, किसी काम को करने के तरीके के बारे में बताता है मैनर। जैसे किसी इंटरेस्ट के साथ कोई काम कर रहा है, बिना इंटरेस्ट को कोई काम कर रहा है, खाना पूर्ति के लिए काम कर रहा है, तो ये तीनों वजह जो है ये सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर में बताती है। जैसे द सोल्जर ऑलवेज फाइट डेली, ये भी एक मैनर है। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, ये भी एक मैनर मानता है। द ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक क्लियरली, ये क्लियरली भी सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर में साउंडली की तरह और डेली की तरह ये क्लियरली भी आता है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाइए आप। नाउ कम दिस पॉइंट, कैन मी द प्लेस वेयर ही वाज बोर्न, मुझे वो जगह बताइए जहां मैं पैदा हुआ। ठीक है, तो ये वेयर है, वेयर, मुझे वो जगह बताओ जहां मैं पैदा हुआ। यानी कि ये दो सेंटेंसों को जोड़ता है, परिभाषा ये है। और दूसरी बात, कैल्स अबाउट टाइम प्लेस रीजन के बारे में बताता है और नाउन की तरफ इशारा करते हुए। तो ये वेयर, इस वेयर ने क्या किया, कैन बी द प्लेस ही वाज बोर्न, इन दोनों सेंटेंसों को आपस में जोड़ा। नंबर 1 बात, ये जॉइंट टू सेंटेंसेस विद ईच अदर। आल्सो टेल्स अबाउट टाइम प्लेस रीजन, साथ ही वेयर ही वाज बोर्न, ये प्लेस के बारे में करता है, कहाँ वो पैदा हुआ, प्लेस के बारे में करता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस। और इसके अलावा प्लेस वेयर ही वाज बोर्न, तो ये दोनों चीज पूरा कर रहा है, इंडिकेटिंग टुवर्ड्स नाउन, वो नाउन की तरफ इशारा करता है। यानी इशारा किसकी तरफ करता है, कैन मी, यानी कि अगर वो किसी से पूछ रहा है, किसी से कह रहा है मुझे बताओ, जाहिर सी बात है वहां कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो किसी व्यक्ति से पूछ रहा है, तो नाउन तरफ इशारा करता है किसी व्यक्ति से। ठीक है, जिसको इशारा करता है, जिससे पूछता है, वो है नाउन, चाहे वो मेल है या फीमेल है, लेकिन है वो नाउन, उससे पूछता है। ये आता है किसमें, इंडिकेटिंग टुवर्ड्स नाउन। इसके अलावा प्लेस के बारे में पूछता है, वो ये प्लेस के बारे में पूछेगा। और मैंने आपको बता ही दिया वेयर कहाँ लगेगा, जहाँ दो सेंटेंसों को वो ये शब्द जोड़ता है। और दो सेंटेंस कौन से आपके, कैन बी द प्लेस वेयर ही वाज बोर्न, इन दोनों सेंटेंसों को ये जोड़ रहा है। अगर वेयर ना होता तो बोथ ऑफ द सेंटेंसेस वुड नॉट बी जॉइंड विद ईच अदर, तो दोनों सेंटेंस एक दूसरे से जुड़ ना पाते। डू यू नो द रीजन, क्या तुम्हें वो वजह पता है, आई केम हियर, कि जिस वजह से वो यहाँ आया, वो क्यों आया यहाँ। इसमें पूछ रखा है, कैप्शन दे रखा, रीजन आ गया आपके सामने, व्हाई ही केम हियर,
दूसरी बात क्या है, आई ने दोनों सेंटेंस को जोड़ा, डू यू नो द रीजन ही केम हियर, दोनों सेंटेंस को जोड़ा। अगर भाई का इस्तेमाल नहीं होता तो दोनों सेंटेंस जुड़ नहीं पाते। बोथ ऑफ द सेंटेंस कुड नॉट बी जॉइंड विद ईच अदर इफ देयर वाज नॉट सच टाइप ऑफ वर्ड दैट इज भाई। अगर इस तरह का शब्द भाई नहीं ना होता तो ये दोनों सेंटेंस जुड़ नहीं पाते। क्या तुम जानते हो, इसके अलावा इंडिकेटिंग टुवर्ड्स नाउन की तरफ इशारा करते हुए, जब डू यू नो द रीजन व्हाई केम हियर, जब वो ये कह रहा है कि क्या तुम वो रीजन जानते हो कि भाई वो वहां पे क्यों आया, जाहिर सी बात है किसी व्यक्ति से पूछता हो, चाहे वो व्यक्ति मेल है या फीमेल है, तो जिससे पूछता है वो एक नाउन है। और इसमें लिखा हुआ है इंडिकेटिंग टुवर्ड्स नाउन। आई नो द टाइम वेयर ही मेट मी, मैं वो समय जानता हूँ जब वो मुझे मिला, तो टाइम यहाँ पे आया हुआ है, टाइम आ गया। वेयर ही मेट मी, जहाँ वो मुझे मिला, तो वेयर क्या साबित कर रहा है, टाइम को, और टाइम इस परिभाषा में दिया हुआ है। दूसरी बात, आई नो द टाइम, मुझे वो समय पता है जहां वो मुझे मिला। तो ये टाइम, प्लेस वगैरह ये सब एडवर्ब में आते हैं, सिंपल रिलेटिव एडवर्ब के अंदर। और वेयर ही मेट मी, और वेयर वो क्या करता है, वेयर पहले सेंटेंस आई नो द टाइम ही मेट मी, इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ रहा है। There was no such type of word as there. Then both of the sentence, I know the time, and he met me. Both of the sentence could not be joined with each other. एक दूसरे जुड़ ना पाते अगर there सब ना होता। और परिभाषा में यही है कि ये वो शब्द है जो दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ता है। there जोड़ता है, भाई जोड़ता है, हेयर जोड़ता है। नंबर एक बात क्लियर हुई। आल्सो टेल्स अबाउट टाइम, प्लेस, रीजन, और प्लेस के बारे में बताता है, और रीजन के बारे में बताता है, और टाइम के बारे में बताता है, और साथ ही इंडिकेटिंग टुवर्ड्स नाउन, वो नाउन तक इशारा करता है। इसमें भी नाउन का इशारा है, इसमें भी नाउन का इशारा है, और इसके अंदर भी नाउन का इशारा है। My dear student, now come to point number 3, interrogative adverb. Interrogative adverb is the word that is used to ask the question. ये वो शब्द है, ये वो adverb है जिसका इस्तेमाल प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। प्रश्न पूछने के लिए कैसे, और ये वर्ड हमेशा सेंटेंस के शुरू में लगता है। There is a word used in order to ask the question, and such word always comes before the sentence. हमेशा ये वर्ड प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, और साथ ही ये सेंटेंस के हमेशा पहले आता है। दो शब्द है, एक प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल, और दूसरी बात सेंटेंस के शुरू में ये इस्तेमाल किया जाता है। दो शब्द है। अब आप देखेंगे तो वेयर आर यू गोइंग, नंबर एक शब्द थी क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन आपको बताई रहा है वेयर आर यू गोइंग नाउ, अब आप कहाँ जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ शब्द आ गया, जाहिर सी बात है प्रश्न पूछता है। दूसरा पॉइंट क्या था, ये हमेशा सेंटेंस के पहले आता है। और आपके सामने वेयर आर यू गोइंग नाउ, इस सेंटेंस से सबसे पहला वर्ड कौन सा है, वेयर। और वेयर किसमें आता है, इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव एडवर्ब हो, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो या इंटरोगेटिव तो नाउन हो। इन तीनों कैटेगरी में वेयर, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, हु, व्हिच, which, such type of word are used in interrogative pronoun, in interrogative adjective, and in interrogative adverb. Now, see the sentence also. Why are you so sad? तुम इतने परेशान क्यों हो? इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और भाई interrogative word has been used before the sentence. Also has been used to ask the question. What percentage have you got in 12th class
बोर्ड एग्जामिनेशन तुमने 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन सी परसेंटेज दी है, क्या परसेंटेज दी है। तो it is also being used to ask the question and it also has come before the sentence. Our test में this was जो simple, this was जो adverb, definition of adverb, kinds of adverb, simple. Number 1 simple adverb, number 2 relative adverb and number 3 interrogative adverb along with definition and along with example also has been given. I have told you like this. Adverb की परिभाषा जैसे कि मैंने आपको बताया था, is a word that intimates about the quality or disquality of a verb, adjective or adverb if any. Verb, adjective or adverb अगर कोई है तो उसकी परिभाषा उसके बारे में, उसकी क्वालिटी और किस क्वालिटी के बारे में बताता है, विशेषता के बारे में बताता है। विशेषता में सब पूछा जाता है, गुण अवगुण, दोष, विशेषताएं, अच्छाई बुराई। Each and everything comes in the category of quality or disquality. Each and everything. विशेषता that you can say important. Also, Ram runs quickly adverb है ये उसकी वर्ब की विशेषता बताता है। यहाँ पर adverb very है और ये एडजेक्टिव विशेषता यानी स्विफ्ट की विशेषता बताता है, जबकि ये क्विकली adverb वर्ब की विशेषता बताता है। Simple adverb of I have told you the kinds of simple adverb kind, simple adverb place, simple adverb number, simple adverb of manner, simple adverb of degree, quantity, simple adverb of affirmation, simple adverb of negation, and number 2 relative adverb and number 3 interrogative adverb. My dear student, it was your adverb, definition and spine, along with definition and example. Now you have to write them in your copy in the same words, in the same space, in same shape, and in the same words. Also comment please if you have any regarding the copy. From my side, today's copy is over. Tomorrow morning I will meet you again for the next chapter. आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर इसी वक्त इसी पीरियड मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।